Hello, friends. Welcome to our channel Decoding Investments, where we discuss how the market behaved today and what's the outlook. So, let us start with discussing first what did we discuss yesterday. So, we discussed yesterday that Nifty is entering into a zone where we expect a lot of buying. I mean, it's a buying zone. It's a demand zone rather, where Nifty is entering. So, we can see this chart here, and the reason cited was because we have seen in past that there are many times where we saw that Nifty tried and consolidated in that range and then moved ahead. So for now, we will take a sigh that okay, the call that we took yesterday did played out well, and Nifty did manage to inch around 230 points up today. This is a absolute Marubozu bullish Marubozu candle. Now, excuse me. Now, what it has done is that it has engulfed not only the previous day's candle but managed to close much above this. Right. For any kind of confirmation of Marubozu, we will have to wait for 1 or 2 more days where we see a confirmation of this pattern panning out. Now, what should we expect tomorrow? To tell you frankly, we should expect consolidation, and Nifty should be in the range of 50-60 points. That is what my expectation is, and we should expect some sort of consolidation. At best it can be in the range of 100 points, but there has to be some consolidation. See, the danger is that if anything, if rises very fast, does all and without consolidating, then there is a chance that it might come down heavily as well. So if follow on मूव फॉर द निफ्टी, अगर ये आज के कैंडल को बिल्कुल सॉलिड सस्टेनेंस चाहता है तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चाहिए होगा. दे विल हैव टू कंसोलिडेट हियर फॉर इट टू मूव अहेड. तो मैं उस कंसोलिडेशन को वेट करूंगा, उसके लिए वेट करूंगा. आई विल ऑब्जर्व इट बिफोर टेकिंग any further positions. तो my view is that Nifty should try and consolidate there. और Nifty के लिए अभी का जो लाइन, I'll show you the line. अभी जो line मुझे लगती है we should act as a stop loss is this level. ये जो यहाँ पे मैंने एक line बनाया ना, you see there is a cross here. So 24,470. I mean, keep it this way. If Nifty is not falling here, again coming here and then again moving up, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ठीक है, देयर इज अ कंसोलिडेशन एंड निफ्टी इज मूविंग अहेड. पर अभी के लिए मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी अब कंसोलिडेट करेगा, एटलीस्ट करना चाहिए बिफोर इट टेक्स एनी फर्दर मूवमेंट अपसाइड. ठीक है, दिस इज फॉर निफ्टी. नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी अगेन, पर बैंक निफ्टी में एक बात बोलूँ मैं, बैंक निफ्टी अपने पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया. अगर हम ये देखें, हमने निफ्टी में देखा था कि उसने अपने इस कैंडल को बिल्कुल बड़े आराम से इसने ब्रेक कर दिया था, पर बैंक निफ्टी हैज नॉट ऑपरेटेड दैट वे. दैट इज व्हाट माय कंसर्न इज एज वेल. आज मैं बैंक निफ्टी का, जब मैं दो बैंक निफ्टी इज अप अराउंड 500 पॉइंट्स, और मैं जब आज बैंक निफ्टी का डेटा देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर इज नॉट क्लियर मूव हियर. इट कैन बी अ कैमोफ्लेज्ड मूव. ये एक ऐसा मूव हो सकता है जो आपको शायद कहीं ना कहीं फंसाए. Right, so we do not have much clarity on bank nifty. Till the time we do not have, we will skip it. और एक और बात, लेकिन बैंक निफ्टी अगर बहुत क्लियर मूव नहीं देता है तो निफ्टी के आगे के मूवमेंट भी थोड़ा सा कॉन्स्ट्रेन हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अप मूव शायद न कर पाए, क्योंकि बैंक निफ्टी इज अंडर प्रेशर. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट बैंक निफ्टी सीम्स टू बी अंडर सम काइंड ऑफ प्रेशर जो बैंक निफ्टी को शायद बहुत ज़्यादा पुल होने न दे. ठीक है, नाउ हैविंग सेड दैट, अगर मैं इफ आई हैव टू लुक एट स्टॉप लॉस हियर और काइंड ऑफ, तो मेरे लिए ये लेवल रहेगा 55,400. अगर ये 55,400 को तोड़, और rather let me put it this way, 55,370 380 टाइप, अगर ये उसको तोड़ता है, तोड़ने के बाद then it might have some downside probably around 55,200 टाइप. ये विल हैव टू सी टुमारो. बट अभी यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी चूंकि स्ट्रांग नहीं है तो विल गो बाय द लेवल्स, और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि 55,350 टू 55,400 अगर ये तोड़ के नीचे आता है, क्योंकि देखिए लास्ट की जो कैंडल है ना, लास्ट की अगर 1 घंटे की कैंडल है, इसने कुछ नहीं किया, जस्ट नॉट डन एनीथिंग. ये पिछले कैंडल के शेडो में ही चलता रहा है, तो ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है. सो आई विल बी आई मीन आई विल बी लुकिंग आफ्टर बैंक निफ्टी very very closely because it is not giving me a very clear picture here. So stay away from bank nifty. Nifty का मैंने outlook आपको दे दिया. Now let us look at the data, that various data that we track here.
अब आज क्या हुआ, आज ये हुआ कि एफआईएस ने उन्होंने कॉल खरीदा और पुट बेचा, सो दिस इज बुलिश। एचएनआईज एंड अदर्स ने क्या किया, एचएनआईज ने हैवी कॉल खरीदा है और पुट बेचा है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो बुलिश। रिटेल ने क्या किया है, रिटेल ने अराउंड 2.5 लाख कॉल बेचा है और 82,000 82,000 के आसपास उन्होंने पुट खरीदा, सो दिस इज बेयरिश। अब अगर हम इंट्राडे मूव की बात करें तो इंट्राडे में ये दोनों एफआईआई एचएनआई पॉजिटिव है, बुलिश है, और रिटेल नेगेटिव है। नाउ दिस इज इन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। अगर हम नेट ओआई की बात करें तो नेट में अभी भी हम देख रहे हैं कि एफआईआईज आर लॉन्ग 2.3 लाख पुट्स, सो वो थोड़ा नेगेटिव है एंड दे आर शॉर्ट कॉल बाय 66,000। एचएनआई एंड ऑल ये भी यहाँ पे 1.52 लाख कॉल्स लॉन्ग है और 1.45 लाख पुट्स लॉन्ग है, तो ये इवन स्टीवन है, इट्स जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ नेक टू नेक, ये दोनों इसमें नेट्स ऑफ ईच अदर, तो ये नेक टू नेक है। और रिटेल की अगर हम बात करें तो रिटेल इज आउट एंड आउट बुलिश, क्यों, क्योंकि उन्होंने 86,000 के आसपास कॉल शॉर्ट किया है और 4.1 लाख पुट शॉर्ट है, सो दिस इज ऑल बुलिश। आज की मूवमेंट हमें ये दिखाती है कि एफआईआईज बुलिश है और डीआईआईज भी बुलिश है, आई मीन एचएनआईज भी बुलिश है, और आपका रिटेल जो है दे आर बेरिश। तो कल ऐसा हो सकता है कि निफ्टी ऊपर खुले या फिर एक रेंज में ही सिमट के रह जाए, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अभी क्लियरली जब तक मैं ये ना देखूं कि ये दिस डजंट स्टार्ट्स लिक्विडेटिंग, अगर इसके अनवाइंडिंग नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल है कुछ भी कह पाना, ठीक है। अब ये डिमांड जोन में है, वहां पे काफी अच्छी डिमांड क्रिएट हो गई, अब मुझे लग रहा है कि अगर ये सस्टेन करेगा तभी ऊपर जाएगा। सो दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, एंड लेट अस फॉलो द अदर डेटा पॉइंट दैट यू ट्रैक। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एफएस ने थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की है, नथिंग मेजर बट देयर इज माइनर शॉर्ट कवरिंग। DIIs have reduced their longs, index longs. HNIs have increased their index long and retails have reduced their index long. तो मतलब हमें ये दिख रहा है कि FIs ने थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की है, DIs ने थोड़ा सा लॉन्ग हटाया है, HNIs ने थोड़ा सा लॉन्ग ऐड किया है और रिटेल ने यहाँ पे आपका थोड़ा सा लॉन्ग अपना घटाया है। दिस इज व्हाट इट इज। कैश एक्टिविटी में अगर हम देखें तो एफआईआईज ने आज नेट में कैश बेचा है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्यूचर और कैश है। फ्यूचर में यहाँ पे इन्होंने 550 करोड़ लॉन्ग किया है और कैश में थोड़ा सा बेचा है। इफ आई लुक एट इट तो कैश में उन्होंने बेचा है, विच इज नॉट वेरी हार्टनिंग टू सी। अब अगर हम नेट पे चलें, नेट बेसिस पे, तो उन्होंने यहाँ पे ये लॉन्ग है, एफआईआईज आर लॉन्ग हियर, निफ्टी में लॉन्ग है, बैंक निफ्टी पे लॉन्ग है, अदर इंडेसेस पे दे आर मार्जिनली लॉन्ग, बट इस पे जो है ना निफ्टी मिड कैप पे दे आर शॉर्ट, ठीक है। तो इंडेक्स की बात तो ये हो गई जहाँ पे हम इंडेक्स को देख रहे हैं। अब हम आते हैं, लेट अस लुक एट वन मोर फैक्टर, हम वी आर लुकिंग एट दिस, ओके, नाउ लेट अस लुक एट, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई हैव टू सी, यहाँ पे देखते हैं हम और क्या हमें देखना है। यस, वी हैव टू लुक एट दिस। हमने पिछला देखा था कि यहाँ पे बहुत हेवी कॉल राइटिंग थी, ठीक है, आज हम ये देख रहे हैं कि कॉल राइटर्स चले गए हैं और पुट राइटर्स आ गए हैं। तो अराउंड आप 24,400 के आसपास 1 करोड़ का पुट राइटर खड़ा है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग, दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग। सो फॉर इमीडिएट बेसिस हमें ये लगता है कि शायद 24,400 तो वॉलेट नहीं होगा, निफ्टी शुड नॉट वॉलेट और गो बिलो 24,400, बट दैट इज हाउ वी सी। बट अपसाइड में हमें ये लग रहा है कि इट हैज टू ब्रेक 24,600 और 24,800, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है, ठीक है। सो वी विल हैव टू प्ले इट लाइक दैट ओनली। नाउ लेट अस कम हियर एंड सी व्हाट इज द ऑप्शन। ऑप्शन ये बता रहा है कि 24,600 जहाँ पे निफ्टी ब्रॉडली एंड किया है, तो वहाँ पे अभी भी पुट का प्रीमियम 116 रुपये है और कॉल का प्रीमियम 18 रुपये है। द डिफरेंस इज कि अंदर से यहाँ पे जो पहले हमने फ्राइडे को देखा था, यहाँ पे अंदर जाके एटीएम इन द मनी जाकर के यहाँ पे उन्होंने कॉल राइटिंग की थी, वो कॉल राइटिंग हट रही है, वो कॉल राइटिंग वहाँ से जा रही है। और यहाँ पे पुट ऑन द अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि पुट यहाँ पे पुट की राइटिंग जो थोड़ी है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे पुट की राइटिंग बढ़ती जा रही है। सो फॉर नाउ व्हाट आई थिंक इज दैट 24,400 स्टैंड्स एज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट, उसको तो वॉलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड द मार्केट इन टर्न इन नेट शुड कंसोलिडेट बिफोर मूविंग टेकिंग एनी अदर लीप, ठीक है। अब नाउ लेट अस कम टू द यूएस INR थिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे दैट इज फाइन।
दिस इज ओके। ये निफ्टी मतलब ठीक है, एक ही रेंज में चल रहा है आपका यूएस आईएनआर। अगर हम एक दिन का चार्ट देखें तो इसने एक्सक्यूज मी, एक्चुअली इसने यहाँ पे दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एंड द रीजन व्हाई दिस इज नॉट गुड इज के यहाँ पे ये ब्रेक कर सकता है। दैट इज डिफिकल्ट टू सी। ये जो है ना, ये इसको ब्रेक कर सकता है। विल हैव टू वेरी मच वॉचफुल। इट्स नॉट ट्रेडिंग एट करेक्ट लेवल, इट राइट जोन ये ट्रेड नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा चिंता का। देखिए अगर ऐसा है कि अगर कल सुबह हम ये देखते हैं कि निफ्टी अगर हमारा जो यूएस आईएनआर है काफी वीक खुलता है, ठीक है, देन इट माइट डेंट निफ्टीज मूव, तब हमें जाकर के विल हैव टू बी स्केप्टिकल। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी पड़ेगा। अभी तो इसका मूव जो है थोड़ा सा शेडी लग रहा है, थोड़ा सा शेडी लग रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने एक टॉप तो बनाया है, पर नीचे बहुत कन्विंसिंगली ये बॉटम नहीं बना रहा है। इट इज जस्ट ट्राइंग टू स्टिक इन हियर। और हम एक दिन का चार्ट अगर देखें तो वो थोड़ा थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है। ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज वरीसम, वील हैव टू वॉच इट आउट। ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्रूड क्या चल रहा है? क्रूड ठीक है, दिस इज फाइन। अब देखिए लेकिन वन पॉइंट इज देयर, अगर बहुत ज्यादा क्रूड गिरता है देन दैट नॉट वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज दैट इंडिकेट्स की इकोनॉमीज आर श्रिंकिंग। अगर ग्रोथ इज इन, जिसको वी ट्राई एंड फाइंड कि ग्रोथ एक पैरामीटर है क्रूड ऑयल के प्राइसेस का, तब हमें ये लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल गिर रहा है तब कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ये हो सकता है कि इकोनॉमीज माइट बी श्रिंकिंग। सो दैट वील हैव टू वॉच इट आउट। पर अभी तक तो कंफर्टेबल रेंज में 65 के रेंज में है, सो दैट इज ओके। राइट नाउ ट्रेजरी अगर हम देखें वो इसी रेंज पे चल रहा है, यूएस ट्रेजरी डिक्लाइन कर रहा है, दैट इज गुड, गुड फॉर द मार्केट ओवरऑल। ठीक है, सो दिस इज आवर टेक फॉर टुमारोज डे। लेट अस सी हाउ मार्केट बिहेव्स एंड मुझे तो अकॉर्डिंग टू मी if I just have to take a call then probably I'll say okay let it consolidate here. Now finally before we go we have to go for the takeaway. आज around 1.88% निफ्टी फ्यूचर पे कवरिंग हुई है, that is good. Now we see here 24,585 and 24,614। तो मुझे लगता है अगर इफ आई हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट देन ये निफ्टी जो है ना, ये आपका इट हैज टू थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे प्रीमियम काफी कम है, ये जो प्रीमियम है ना ये काफी कम है। दिस इज अराउंड 25-30 पॉइंट्स। ये 15-10-20 हाँ 25-30 पॉइंट्स। दिस इज नॉट वेरी हार्टनिंग टू सी, पर यही है कि थोड़ा सा प्रीमियम और होना चाहिए था। सो लेट अस वेट एंड सी। अब अगर हम यहाँ पे स्ट्राइक्स की बात करें तो 25,000 के कॉल पे इतने सारे कॉल राइटर हैं 1.09 करोड़, जिनका 14 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास कॉल राइटर गए हैं। ठीक है, तो 25,000 से गए हैं 24,800 से गए हैं, मतलब 24,500 तक गए हैं। ठीक है, देयर कॉल अनवाइंडिंग यहाँ पे हुई है, बट स्टिल वी हैव गॉट सब्सटेंशियल कॉल राइटर एट 24,500। अब निफ्टी की और अगर हम नीचे पुट की बात करें तो पुट पे 24,400 के आसपास बहुत तगड़ी पुट राइटिंग है, दैट इज 96 लाख। ठीक है, तो और उसमें 57 लाख तो आज के आज ही ऐड हुए हैं। तो आई थिंक दिस शुड होल्ड फॉर अस टुमारो। इससे नीचे कुछ जाना नहीं चाहिए, बट विल हैव टू वॉच इट आउट कि ये कंसोलिडेट करता है कि नहीं। पीसीआर एटीएम की अगर हम बात करें तो 0.9 इज द ओवरऑल पीसीआर, आई मीन इन द मनी स्ट्राइक्स की पीसीआर है और ओवरऑल एक की पीसीआर है विच इज बुलिश, फाइन। तो हमें ये देखना पड़ेगा, और जब तक हम ये ना देखें कि एफआईएस के जो नेट पुट लॉन्ग पोजीशन है वो लिक्विडेट नहीं हो, देन वी शुड ट्रेड वेरी कॉशियसली। सो दिस इज आवर टेक फॉर टुमारो and I request you to kindly share, subscribe and like the video, for heaven's sake like the video. That is what my request to you all is, so that is a big encouragement if you do that. And see you tomorrow. Best of luck.